Uh, Good evening, everybody. Uh, its network of wiring is such a high between all of us in our brain cells that it is beyond anybody's imagination. Somebody can even see a ghost. Somebody can think of landing out on Neptune or Jupiter, or whatever you can say. It's a very crazy thing. We are full of emotions, beliefs, and the decisions do get affected by all these things. Now, today webinar is very unconventional kind. Most of the people will think what actually happens when you enter trading. What phases do you go? Actually, I will be only targeting the first phase today. I'm not planning to go anything else beyond it because it will be too boring for all of you, as the number of slides are not very less also today. I will request everybody to kindly don't unmute themselves and don't please switch on your cameras. Now, this is a standard disclaimer. What I normally, this is a free education platform. We do not offer any kind of paid courses. We don't intend to change anyone's investment or trading styles. All presentation under this forum is for education purpose. None of the mentors who are coming in the sessions are SEBI registered, and we do not guarantee results. We are only sharing our experiences with you. Please understand the concept. Whenever you're taking any trading strategy which is told to you or any concept which is told to you, please do a lot of back testing, or you can say paper trade before you take actual trades. In case you trust any financial advisor, please do consult about whatever you have learned in the class before you take any trades. We are not responsible for any profit and losses which you incur. Now, this is what is classically taught to us, that the trading is of three parts: trading strategy, risk management, and psychology. And in the center of the three lies the trading edge. Now, you just see this part also. The psychology is also a very good thing. You have a lot of trading strategy, risk management, you learn everything. But have you ever tried to master the psychology which is there? Now, CS. What is stock trading in India is basically. We are trading is only this thing is ट्रेड लो, पैसे हैं, ट्रेड लो, पैसे बनाओ और बाहर निकलो. ये तो एक ऐसी जगह है, गेट रिच स्कीम है. This is the biggest false notion anybody has. Second is, इसमें तो तीन काम होते हैं: ट्रेड करना है, बाय करना और सेल करना. सस्ता खरीदो, महंगा बेचो. Trust me, all of you entered stock market with only these two notions. हमने तो ट्रेड करने जाना है, 10,000 लगाना है, 1 लाख रुपए एक साल के बाद बना के आना. एंड हुआ क्या? 1 लाख का लॉस किया, मार्केट को गाली निकाली और वापस आ. Actually, we end up only abusing the market. It's a gambling place, everything. It's a gambling place. It's an uncertainty. The big players play with the small players. These are all feelings you get into when you are started trading. So whenever you enter a trading cycle, most of you who are coming to even to the classes are in search of a holy grail. आज हमें कुछ ऐसा मिलेगा, जादू का, अलादीन का चिराग, हम रगड़ेंगे और हम करोड़पति हो जाएंगे, है ना? Let's be said, you all, हम सब ने, मैं भी, including me, we have gone and watched lot of YouTube videos to find some ऐसी strategy जो सिर्फ हमारे पास होएगी और get rich scheme में होएगी हमारी. आज हम 10,000 डालेंगे और 10 लाख रुपए कल सुबह हम बाहर निकालेंगे, है ना? Everybody has this feeling. Agree or don't agree. We will invest in a share worth 1 rupees and it should be 1,000 rupees in 1 month's time, and we will be multi-billionaire. These are the common feelings you all have. I also had. Search for super indicator.
So my search started when I entered the stock market. So everything I'm going to say what is in there in me, because I don't want to say it to anybody else. So I can blame myself. So when I entered stock market 2 years back, after learning price action from Pavan sir and all that stuff, still the greed was too high in me. To get rich overnight was very high end. So what I started doing is, I started looking for the best charting software. जिसमें ना कोई lag ना हो, ticks पे काम आए. Every tick should be, I should be making money. Best possible indicators. पूरा मैंने ट्रेडिंग व्यू में जो भी लॉन्च होता था इंडिकेटर उसको यूज करके देख लिया. डाटा सर्विस एंड न्यू सर्विसेज, बड़ा कोई एक ग्रुप में बड़े आते हैं, एक दो ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें 50 कॉलें आती हैं, वो डाटा बेस होता है. मैंने डाटा एक्सेल शीट सब निकाल के. Then apart from my price action classes, I joined 5-6 more mentors that I will mix up everybody's teaching and develop such a strategy which will be my goodness never seen in the world. And I will become overnight rich and I will be driving a Lamborghini in 6 months time from. When all that didn't work, then I started going into astro. तारों का गेम होएगा. फिर किसी और का एनालिसिस सुनना शुरू किया. फिर ट्विटर पे भाग गया कि यहाँ पे टिप्स बड़ी अच्छे मिलते हैं. Trust me, if I put a poll right now, the result for this search is going to be 99%. Only one out of you who may in fact be lying have not done these things. You all have done. I have also done. And I'm saying मैं तो करता ही हूँ ये सब. What is the end result? End result is failure in 90% cases, and we are back to zero after all these searches. Isn't it? We are back to zero. Still searching, again going back to the first step again. Best charting software, newest indicators, data news services, mentoring classes, Magic, Astro, analysis, Twitter. Well, I ended up buying 25,000 rupees annual subscription of TradingView. I should have the best, but 10 indicator लगा के. And I was wondering that without indicator, my charts are so beautiful. With indicator, I used to never understand it. So this is what is the error in our brain. This is all, we'll see why all this happens. So where does the problem actually lies? The problem lies here. Exactly here in our brains. Our brains is a very complex structure. So So 80% of the losses or whatever you tend to make are because of your brains. And 20% are other reasons. So 80% of the losses are because of this factor. So why do you think unsuccessful traders are obsessed with market analysis? Because they crave for a sense of certainty that the analysis like to give them. एक false आपको hope देता है कि हाँ ये analysis बहुत अच्छा है और इससे ना हमें result बहुत अच्छा मिलेगा. प्रॉब्लम क्या है कि हम हर ट्रेड में सही होना चाहते हैं. हम हर ट्रेड में 100% सक्सेस चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम लोएस्ट पॉइंट पे एंटर हों और हम हाईएस्ट पॉइंट पे भागें. और ये हम इतने डेस्परेटली करते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम ट्रेड करने आए. हम अपने आप को इस लेवल तक खींच के ले जाते हैं जहां पे ये प्रॉब्लम आ जाती है. This is all because of one word known as human emotion. और सबसे कॉमन जो ह्यूमन इमोशन है जो नेचुरली हम सब में है, दैट इज नोन एज फियर. डर. It's the strongest emotion we have in our body. Why we have डर? सिंपल है. अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, आपके पास एक्यूरेट ट्रेनिंग नहीं है, आपका एक्यूरेट ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुई है, so you are an untrained man.
टोटली अनट्रेन, मतलब आपको कुछ नहीं आता, तो आपके दिमाग को पता नहीं सही क्या गलत क्या, बस आपने ट्रेड लेना है. So this is where the problem starts. Is that the brain is untrained. We have not completed our training. We have not understood the concept. We don't know in and outs. We have not understood. We have not developed the temperament. So our brain is untrained. And untrained brain sees uncertainty, worry, and fear as one thing. Uncertainty, worry, and fear are only single way the brain perceives. ये तीनों चीजों को वो एक ही मान के चलता है. So now we have discussed the word. First is uncertainty. You can't control the markets. This is an uncertain thing. And we think we can control the markets. ये भी एक गलत बात है. Markets will do whatever they want to do. Trade is always on probability. कोई ऐसा नहीं indicator, ना कोई ऐसा strategy which is on high success rate or failure rate. It is all probability कि ये बना है, hammer बना है, 3 soldiers बने, यहाँ से trade ऊपर जाना चाहिए. नहीं गया तो continuation हम trend बोल देते. And brain में हर negative uncertainty को as a failure लेने की एक आदत है. This is a human tendency. जब हम uncertain होते हैं तो हम फिर worry करते हैं. और सबसे पहले दिमाग में उल्टे थॉट्स आते हैं, यार ये तो मैंने गलत ट्रेड ले लिया, और ये तो यार मेरे तो अक्ल नहीं है, उसने तो बोला था यहाँ पे सेल है, मैं बाय क्यों कर रहा हूँ, ये तो मैंने गलत किया. नाउ यू स्टार्ट इमोशनली ट्रॉमेटाइजिंग योर बॉडी एंड देन सेट्स इन फियर. एंड व्हेन द फियर कम्स योर थॉट्स आर हाईजैक्ड एंड अ लॉट ऑफ पैनिक अटैक्स. आपको पता भी आप सही हो पर आप गलत डिसीजन ले रहे हो. This is known as fear. Starts from uncertainty, converts into worry, and then comes into fear. So fear is the most common emotion which humans have. And this is the reason why the traders lose money. अगर आप डर को नहीं हरा पाए तो आगे जीत नहीं, डर के आगे जीत. So what are the types of fear a trader has? Now listen to this. There is a fear of uncertainty. Market कहीं पे भी हो सकता है. आप बाय में बैठे हो, सडनली बड़े FIIs आए, उठा के मार्केट नीचे फेंकी, बैंक निफ्टी गिर के लॉस हो. This is uncertain place. Certainty होती तो लोग रातों रात मिलियनियर्स बिलियनियर्स बनते. Next is the fear of loss. मुझे लॉस ना हो जाए. थर्ड इज जो सबसे कॉमन है, मैं ट्रेड में से मिस ना कर दूं, मैं जल्दी एंट्री ले लेता हूं, और वहां से क्या होता है, स्टॉक नीचे आ जाता है थोड़ा सा, फिर होता है यार मैंने गलत एंट्री ले ली. अर्जेंसी होती है ट्रेड करने, यार मैंने आज 10 ट्रेड करने थे, मैंने तो आज 2 ही किए हैं, तो मैं 10 ट्रेड करूं. तो उस जल्दबाजी में ट्रेड कर रहे हैं. मैं उस दिन क्लास में भी बोल रहा था, एवरीबडी वाज डिस्कसिंग, सर ये शेयर देख लो, वो शेयर देख लो. मैंने कहा 5 शेयर ही देख लो, बहुत है. They were ready to listen to every possible. सर ये इसमें भी स्विंग बन रहा है, उसमें भी बन रहा है, लेवल्स तो याद नहीं है, आप ट्रेड लेने बैठे हो. Then because आपने नहीं किया, so there is always a fear of not being right. The fear is going to be very bad. अब आप राइट नहीं हो तो आपको हमेशा अपने अंदर कमियां लगेंगी, तो दैट इज साइन ऑफ इनएडिक्वेसी. देन आपको ये लगता है यार मैंने गलत कर दिया, मैं तो अपनी फैमिली के पैसे उजाड़ी जा रहा हूँ. फिर ये डर लगता है यार मैं सक्सीड करूंगा कि फेल करूंगा, अल्टीमेटली मुझे पता नहीं, मैं ग्रो करूंगा कि मैं चेंज करूं, मैं क्या करूं. सो दीज ऑल फियर स्टार्ट्स कमिंग इनटू योर माइंड. सबके दिमाग में आते हैं, मेरे भी आते हैं. 28 सितंबर 2019 इफ आई करेक्टली रिमेंबर इज, मैंने पवन सर को फोन किया, नहीं सॉरी 9 सितंबर, आरबीआई की कोई पॉलिसी आई थी, आई वाज ऑपरेटिंग ऑन ए किडनी स्टोन. बाहर निकला तो लॉस देख के मेरे हाथ पैर सुन हो गए थे. मैंने पवन सर को फोन कर दिया, कहीं मैं अपना घर के पैसे नहीं उजाड़ दूं. ऐसा हुआ है मेरे साथ. पता नहीं क्या अनाउंस किया उन्होंने, उठा के मार्केट नीचे फेंक दी, ऐसी ही फेंकी कि मार्केट का, हमारे तो यहाँ पोर्टफोलियो लाल हो गए. कोई छोटे लाल तो कोई नहीं, 20-30 हजार तो नहीं, तो लाखों में पहुंच गए एकदम ही बात. So this is what fear is always there in the market.
नो एवरीबडी सेज देयर इज नो इमोशन इन बिजनेस, है ना? एवरीबडी सेज, ट्रस्ट मी, बिजनेस में कोई इमोशन नहीं है। दिस इज टोटली फॉल्स, ये झूठ है। अगर कोई आपको कहता है देयर इज नो इमोशन इन बिजनेस, देन ही इज लाइंग टू यू, और इससे बड़ा झूठ आप नहीं सुनोगे। अगर इमोशन नहीं है, if there are no emotions, that only happens after death. जब तक आप जिंदा हो, there has to be an emotions in a human, and these are biological, natural है। खुशी में खुश होना, दुख में दुख होना, रोना, हंसना, they are a part of emotional life. We are not here to kill emotions. We are here to become emotional designers, controlling our emotions. हमने ये बनना है। Being emotional is not weak. मैं भी किसी जमाने में बड़ा इमोशनल होता था, मेरे क्लास में लोग इमोशनल फूल कहते थे। अब मैं उल्टा हूँ, मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, बट मैं अपने इमोशंस कंट्रोल करता हूँ। मैं कोई रोता हंसता नहीं हूँ बहुत ज्यादा, बिकॉज आई हैव लर्नड हाउ टू कंट्रोल माई इमोशंस। कंट्रोलिंग योर इमोशंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगी, तो अभी मैं सब ऐसी बातें कर रहा हूँ। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑल दिस थिंग इज। Now there are emotions during the trading. When you are punching a trade, what happens to your body? So people are, so there is a arousal. आप ट्रेड देख के होता है, फिर एक फीलिंग आती है, फिर एक मोटिवेशन होता है, आप उसका क्या मीनिंग लगाते हो, और अल्टीमेटली आपका टेम्परामेंट क्या बनता है। सो अब हम इसको धीरे धीरे ना, इसको ये 5 स्टेप्स होते हैं, इसको हम करेंगे धीरे धीरे। सो ये बहुत बड़े नहीं है, ये छोटे से पिक्चर्स ही पिक्चर्स हैं। सो व्हेन यू सी अ ट्रेड, आंखें खुल जाती है ना, या ट्रेड आ गया, बस सपोर्ट पे है, इसको तो अभी पकड़ लो, दिमाग काम करना बंद। ये मैंने लाइन ड्रॉ की थी, इसके ऊपर आ गया ट्रेड, अब तो मैंने लेना है, मैंने फॉर्मेशन की वेट नहीं करना, मैंने सबसे लो प्राइस पे। you get into a state of excitement. You can see literally sometimes your even breathing stops for a second. Your face turns red. There is a heat running in your body, and your eyes get fixed to the screen. Trust me, हुआ है, ये सबके साथ हो। और लिटरली मानो या ना मानो, आपके हाथ भी कांपे हैं उस टाइम, और आप बार बार फोन को चेक कर रहे थे कि मेरे ट्रेड का क्या बन रहा है। दिस इज अराउजल मूवमेंट यू पंच इन ए ट्रेड। एक्साइटमेंट में आप क्या भूल जाते हो कि आपने कितना ऑर्डर पंच किया, आपने किस प्राइस पे पंच किया, क्या फॉर्मेशन हो रही थी, आप ये भी भूल जाते हो। वन एग्जांपल आई सेड वाज, एवरीबॉडी नोज मैं अल्ट्राटेक 4-5 रुपए के स्टॉप लॉस से ज्यादा नहीं उठाता। अल्ट्राटेक मैंने एक लेवल पे देखा, आई गॉट सो एक्साइटेड, मैंने उसको 200 शेयर पंच करने थे, मैंने पंच किया एंड मैंने कर लिया। आधे घंटे बाद देखा शेयर 40 रुपए ऊपर है, पर मेरा प्रॉफिट तो 800 रुपए का। 200 की जगह एक्साइटमेंट में मैंने सिर्फ 20 शेयर बेचे। सो दिस इज अराउजल, एड्रेनलिन रश इनटू योर बॉडी। एकदम एड्रेनलिन दौड़ती है, the male hormones gets excited, you are in a state of excitement, breathing रुक जाती है आपकी, and it happens. जब आपको ये होता है, उसके बाद आपको क्या फीलिंग आती है? अब 2 तरह की फीलिंग आ सकती है। इफ द ट्रेड गोज इन योर फेवर, अगर ट्रेड आपके फेवर में गया कि आपने सपोर्ट पे खरीदा और वो ऊपर जा रहा है, तो आपकी बॉडी में एड्रेनलिन रश और टेस्टोस्टेरोन रश इन द मेल बॉडीज होगा। आपको लगेगा आप खुदा हो, आपके पास वो चीज आ गई जो आपको अब अमीर बनाएगी। यू स्टार्ट बोस्टिंग,
I picked up this trade at this level and then it's going at this level. I made this much profit. खासकर अगर आपने एकदम बड़े हाई लेवल पे जाके छोड़ा होगा शेयर, जहां से शेयर रिवर्स किया, तो यू विल कीप ऑन बोस्टिंग होल डे. मैं भी करता हूँ कभी कभी, आई डोंट डिनाई इट, मैं भी करता हूँ कभी. ये नेचुरल है. There is a hormone rush in my body, adrenaline and testosterone going in my body, which makes me do all this thing. अब अगर ये हो जाए तो क्या होता है? So, इसका एक दूसरा हार्मोन होता है, उसको कॉर्टिसोल कहते हैं. जो डॉक्टर्स हैं उनको समझ आ जाएगी ये बात. मैंने भी एक ट्रेडिंग बुक से निकाला, उन लोग नहीं होता. फियर सेट्स इन. मेरे पैसों का क्या होगा? मैंने गलत ट्रेड ले लिया, मेरे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म्स अप हो जाएंगे, एकदम ऊपर आ जाएंगे. यार मैं ये ट्रेड ना काट देता हूँ, यार ये ना गलत हो रहा है. और जैसे ही आप काटोगे, शेयर वापस दूसरी तरफ घूम जाए. है ना? होता है सबके साथ. मेरे साथ तो बहुत होता है. मैंने कभी शुरू में जब ट्रेड करता था, ये उल्टा घूम जाता था, मैं ट्रेड ही काट देता था. मतलब घूमने से पहले ही मैं काट देता था. अब वो कहना कि 2 ग्रीन कैंडल्स बनी, उसके बाद 1 रेड कैंडल बनी, मैंने उसी टाइम ट्रेड काट दिया कि मेरा प्रॉफिट बच जाए. एंड देन यू सी वो 200 रुपए ऊपर भाग गया. So this is what happens when you see a trade. This is the feeling you get. And both these things leads to a lot of trading mistakes. क्योंकि ये आप एक्साइटमेंट में आ गए. ना 2 चीजें होंगी जब आप एक्साइटमेंट में होते हो या फियर में. या आप एक फ्लाइट मोड में चले गए हो, हवा में उड़ रहे हो, या फाइट मोड में. अगर आपके फेवर में गई तो आप लोगों की आपको ग्रैंडियोसिटी होगी, बहुत बड़े चीज हो. और अगर आपके अगेंस्ट गया, अब आप आ जाते हो रिवेंज ट्रेड में, मार्केट से बदला लेने की तरफ. यू फाइट विद द मार्केट नाउ कि मैं अब अपना ये पैसा जो दिया है, मेरा 5-10 हजार गया, ये आज मैं मार्केट से रिकवर करके. दिस लीड्स टू इवन मोर डैमेज. Even more damage. So whatever happens in the trade is ultimately ये चीजें होनी चाहिए. Either you accept it, you start condemning it, you start finding fault in it, and this is the last 2 things we don't try to do at all. Trying to improve ourselves and improvising our behavior and reaction to stimulus. This we don't do. This is the biggest fault where it comes. Whatever we may do, temperament is always genetic. आप कैसे बने हो ये बचपन से डिसाइड होता है. आप गुस्से वाले हो, हंसमुख हो, काम हो, आप एग्रेसिव हो, आप एकदम ही सुस्त हो, ये सब बचपन से बना होता है. ये नहीं है कि चेंज नहीं हो सकता. इट कैन बी चेंज्ड इफ यू आर रेडी टू लर्न इट. एक लर्नड टेम्पलेट्स होता है कि स्टिमुलस बेस्ड आपका टेम्परामेंट डेवलपमेंट होता है. अगर आप उसमें नहीं लर्न कर पाए तो ये आपको प्रॉब्लम टेम्परामेंटल रहेगी. Learning to overcome fear is the most important thing. Now we are almost finishing in 5 or 10 minutes maximum. Won't take much time. So अगर हमके पास हमारे अंदर डर है, अगर हम डर को ही नहीं तोड़ पाए तो हम क्या कर लिया? हम तो कुछ नहीं कर पाए. वो कहते हैं ना, वो कौन सी माउंटेन ड्यू की याद है, डर के आगे जीत है. एक्चुअली डर के आगे जीत है. So the good traders have always conquered have been able to defeat fear in their body. What is fear is the false evidence appearing real. गलत चीज आपको असली में लग रही है. ये होता है डर. जब भूत का डर, भूत नहीं होता है पर हमें डर है. ऐसी बड़ी सारी परसेप्शन. हमारे दिमाग सबसे पहले नेगेटिव सोचते हैं जब हम एक ट्रेड लेते हैं. यार अब मेरे पैसे चले गए तो मैं क्या करूं? That's why I always keep on saying, always think positive first. नहीं तो ये हो जाता है. So mastering trading psychology is the most important thing, and developing your brains to
How to react to a fear is most important. Now I ask you one simple question. You are not your brain. आपके दिमाग में कौन रहते हैं? आपके दिमाग में दो लोग रहते हैं हमेशा, एक नहीं रहता. सोच के देखना, आपके दिमाग में दो लोग रहते हैं. हम, मैं रहता हूं. दूसरा हमारे थॉट्स एंड बिलीव्स, जो दोनों अलग चीज है. हम सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं. दैट इज वेयर द डिफरेंस कम्स. हमारे दिमाग में दो पर्सनैलिटीज रहती हैं. एक हम है जो हम दुनिया को दिखाते हैं, एक हमारे थॉट्स एंड बिलीव्स. और यहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि हम डबल पर्सनैलिटी. So what are our thoughts and beliefs? Is a sense of inadequacy, a sense of not mattering, sense of unworthiness and powerlessness. अब इनका क्या क्या मतलब है? सबसे पहले हमारे बीच में यह रहता है कि आई कैन नेवर बी गुड एंड स्मार्ट इनफ. ये सबके अंदर है. मैं कभी अच्छा नहीं हो सकता. कांट मेक मिस्टेक्स. मैं गलतियां भी नहीं कर सकता. और मिस्टेक्स हुई, इट्स अ साइन ऑफ फेलियर एंड माय inadequate behavior. I don't matter to most of the people and can't bear with loss. Every loss we feel more useless. This is normal thing. Whatever I may do, I cannot make change and nothing is going to change for me. मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मैं किसी को कुछ बदल सकता हूँ. ये हमारे कॉमन डायलॉग्स हैं. Because we are self-critic. हम अपने आप के अंदर गलतियां ढूंढते हैं. ये हमारी सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है. ये हमारी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है. हम अपने अंदर गलतियां ढूंढते हैं. This is what is, we always have a sense of failure and uselessness always going in the body. आपके साथ कोई एक नेगेटिव इवेंट हो जाता है, आप अपने बारे में एज ए फेलियर, अपने आप को जिंदगी भर एज ए फेलियर और यूजलेस बंदा लेके चलते. माइंड मत करना. नॉट इन ट्रेडिंग, इन एनी स्फीयर इन योर लाइफ यू हैड इट एंड यू हैड. सिंपल मैं आपको बोलता हूँ, टीन हुड में किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को बर्थडे पे कार्ड दिया. उसने कार्ड फेंक दिया. वो सेंस ऑफ यूजलेसनेस हमारे अंदर. ये हुआ है हम सबके साथ. So yes, self-criticness kills the most. So once your mindset change, everything will change outside you, including you. So ये self-critic को सबसे पहले मार. Kill the fear inside you before it kills you. अपना डर मारो अंदर से. कोई पहाड़ नहीं टूट जाना. एक दो ट्रेड अगेंस्ट चले जाएंगे. सबके जाते हैं, हमारे भी जाते हैं. मेरा पोर्टफोलियो 7 लाख रुपए नेगेटिव चल रहा है. कोई डर नहीं है. कमाया है तो 7 लाख नेगेटिव हुआ है ना. नहीं होता तो क्या होता. You are much stronger than what you think. You are much smarter, much more intelligent than what you normally think you are. आप उससे कहीं ज्यादा अच्छे. अपने अंदर एक अपने लिए प्यार जगाओ. जगाओ कि मैं जो करता हूँ वो गलत नहीं होता and I should accept myself. मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा. Whenever you are in an excited stage or those whenever you are in excited stage, go down, do meditation, take deep breaths, doing it. Even before you punch a trade, close your eyes for 2 minutes, or maybe you can set 10 seconds, 15 seconds, take 2 or 3 breaths before you punch your trade. This is the most important thing you will do to yourself. Always connect to whatever is happening to you on your sides. Change को accept करो, acknowledge करो कि हाँ ये मेरे against हुआ था, and learn from it. कभी भी किसी लॉस को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लेना अनलेस की जरूरत से ज्यादा बड़ा आपने ना लिया. कॉन्फ्लिक्ट अपने अंदर मत करना. सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट मत होने देना कि मैं गलत हूं, मैं ही बहुत खराब हूं. फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ. ऐसा कोई बंदा नहीं है यहाँ पे जिसके हमेशा 90% मार्क्स आए इस फोरम में. मेरे नहीं आया ऐसा. So if you don't learn from your failure, mistakes and your failures, then you will never learn in your life. So there is a long-term change. It doesn't happen overnight. So there are a lot of
changes would take may take 6 months to 1 year. 6 महीने से 1 साल लग जाता है कि आप ये long term change लेके आओगे अपने सोचने में. Now this is a 5-step move. First is emotional regulations. Regulate yourself to in a way that your response to any kind of arousal is मतलब या fear या उससे ऐसा ना हो आपके अंदर की आप अपने सेंसेस खो दो, आंखें ना खुली रह जाए, सांस लेना बंद कर दो. ये करो, अलग करो. टेक डीप ब्रेथ्स, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना सीखो. दिस इज फर्स्ट इमोशनल रेगुलेशन. डोंट कंसिडर फेलियर एज अ नेगेटिव साइन. Consider failure as a sign that you need to improve from here. This is the most important emotional regulation you have to do. Mindfulness, this is the second stage. जब आप कोई चीज ऐसे देखो, 2 मिनट आंखें बंद करो, जस्ट वेट. हाँ यार, यहाँ पे ट्रेड लेने का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, पहले सोचो अपने दिमाग में. Just because you want to take a trade, don't take a trade. This is the most important. अपनी बॉडी को अपने साथ, अपने थॉट्स और अपनी बॉडी को बराबर मिलकर, ये जो हम और थॉट्स एंड बिलीव्स है ना, इसको एक ही डायरेक्शन में लेके आओ. ये ना हो कि आपकी बॉडी कुछ कह रही है, आप कुछ कह रहे हो, आपके थॉट्स एंड बिलीव्स कुछ और कह रहे हैं. यहाँ पे वो फिर वो कंफ्लिक्ट आ जाता है एंड डिसीजंस गेट अफेक्टेड बाय ऑल दीस थिंग्स. जब आप ये माइंडफुलनेस लोगे, आपका अंदर का सेल्फ क्रिटिक मरेगा ही मरेगा, जो आपको ये कहता है दैट यू आर यूजलेस. Then you will peak once. You will start peaking again. And trust me, यहाँ पे सबसे बड़ी फिर प्रॉब्लम आएगी. जब आप पीक करोगे, so there are a lot of elements will come into you. Your decision will be very fast. You will not react to it. You will again be doing very well. आपको बहुत अच्छा लगेगा हर चीज करते करते. आपको ऐसा लगेगा यार मैंने बहुत अच्छा कर रहा हूँ. I'm doing very well. अब I'm on the correct path. You will start reorganizing your mind, and then you will have a loss. जब आप पीक परफॉर्मेंस में होते हैं ना, तब आपसे बड़ी मेजर गलती है, फिर आपको आएगा लॉस. Then you start your reorganizing of your trading mindset. वो लॉस को आप कैसे डील करते हो, that is the most important step. And you again start from step number 1. ये ट्रेडिंग साइकिल की एक सर्कल है जो सबको करना है. मैं अभी करीब समवेयर ऑन स्टेज 2 और स्टेज 3 के बीच में. आई एम नॉट एट स्टेज 4. मैं इन दोनों के बीच में आ रहा हूँ कहीं पे. आई स्टॉप बीइंग सेल्फ क्रिटिक टू माय सेल्फ. ऑलवेज स्टे पॉजिटिव. मैं बार बार बोलता हूँ, पॉजिटिव माइंड से ट्रेड करना चाहिए. ट्रस्ट योरसेल्फ that you have the capability, you are going to do it. आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, वो इस ट्रस्ट के साथ है कि yes, you can do it. Yes, I will do it. I am capable of doing it. So trust yourself first. Stop comparing yourself. यार आज ना डॉक्टर कमल ने दिखाया, उन्होंने बैंक निफ्टी में 18,000 रुपए बनाए. यार उसने ना XYZ ने कहा ज्ञान के ऊपर ये करेंगे, यहां से लेवल्स आ जाते हैं, वो हो जाता है. So what you do is you are comparing yourself with somebody who has mastered another thing. So you are entering into an unknown venture, and what you end up doing is loss. क्योंकि आपको रूल्स पता नहीं है, आप उसको पीछे से फॉलो करने. यूज योर ब्रेन ऑलवेज. अपनी जरूर सुनो पहले, दूसरों की सुनने से पहले. वो जो हम है ना, और उसको थॉट्स एंड बिलीव्स को बराबर पे लेके आओ. यूज योर ओन ब्रेन फर्स्ट. ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट. आपका इंस्टिंक्ट क्या बोल रहा है ट्रेड के बारे में, सही हो गलत हो कोई बात नहीं यार, ट्रस्ट तो करो अपने आप के ऊपर पहले. मेन स्टेप तो यही है ना. देयर आर लॉट ऑफ वाइब्स एंड एनर्जी व्हिच विल टेल यू द करेक्ट पाथ. So you don't need anybody else positive vibes to give you the path, right? Believe in yourself. Do not do blindly whatever anybody says, including मेरा. मैं जो कहता हूँ ना blindly करो यार. मैं तो खुद ही पहले disclaimer देख के चलता हूँ. जो सुनते हो पहले उसको clarity से सुनो.
पीस ढूंढो, उसमें आपको सुकून कहीं से मिल सकता है तो फॉलो करो, नहीं तो छोड़ के आगे निकलो। क्यों जबरदस्ती सुनने क्लासेस ऐसी फालतू? डोंट फॉलो द मासेस, ये तो मैं आज भी बोलता हूँ, बिकॉज एम इज ऑलवेज साइलेंट and I don't want to say what it then pronounces. Anybody can guess it. I don't want to be abusive towards a particular animal, but I don't want anybody to be compared with that animal also. Tip providers, यार इनका तो फोन आते सारे ना गोली मार दे। I don't say they're all are bad, but majority of them are there. How accurate are their calls? Trust me, if they were so accurate, so they should have been multi-billionaires. वो क्या आपको फोन करके भीख मांगते हैं, सर आप हमसे कॉल ले लो, हम आपसे 500 लेंगे, 1000 लेंगे, 2000 रुपए लेंगे। कभी हो सकते हैं ऐसे? आधों को उन्होंने बाय का बोल देना, आधों को सेल को बोल देना, दोनों में से एक तो जीतेगा ही, जो जीतेगा उसकी तरफ हो जाएंगे, बाकियों को बाय बाय टाटा कर देंगे। When you follow these call givers, na, it causes cross connection in your brain bias and leads to a lot of destruction in your mind, both financially, psychologically, and you will practically be lost like this. I'm giving you one example is, I had 400 odd shares of Reliance. I had accumulated at 1200 rupees, 1100 से 1200 के बीच में. It was trading somewhere around the 1340 rupees. अभी इसकी ना फेसबुक वाली न्यूज नहीं आई। एक किसी बंदे ने झुंझुन वाला की ना फोटो लगा के ना मुझे कॉल व्हाट्सएप मैसेज भेजा, कहते कॉन्टैक्ट अस फॉर ए शॉर्ट स्ट्रैटेजी। ओके, मैंने उसको बेवकूफों की तरह फोन किया। उसने मुझे 1340 रुपीज में बोला सर रिलायंस शॉर्ट कर, और मेरा जैसा बेवकूफ बंदा अपने 400 शेयर शॉर्ट बेच दिया। I sold my 400 shares of Reliance at 1340. कहता सर इसने आज 1310 आना है, आप कवर कर लीजिए। शेयर चला गया 1380। अब मेरे अंदर कवर करने की हिम्मत नहीं, मैंने जाने दिया शेयर। नेक्स्ट डे उसकी फिर कॉल आई, सर क्या बना आपका? मैंने कहा लॉस हो गया। कहता है आप अपना 1401 पे है, यहाँ पे 400 शेयर और शॉर्ट कर। यहाँ पे मेरा दिमाग चल गया, मैंने पेपर पे लिख लिया इसने 1401 पे बोला, शाम को 1440 रुपए पे। मेरे तो 400 गए, मैं 100 रुपए का प्रॉफिट भी हुआ। So I don't follow all these call givers. So don't do it. You are good enough to do it. Please do not overtrade. जब आप ओवर ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आपका साइकोलॉजी ये होता है कि आप मल्टीपल जगह पे आपका दिमाग चल रहा है। आपने 2 ट्रेड लिए ना, आपको पता है हाँ यार मैंने बजाज फाइनेंस इतने पे लिया, अल्ट्राटेक इतने पे लिया, ये इसके ऊपर चल रहे, ठीक है। 20 शेयर लिए होंगे, आपको ये भी नहीं पता होगा कौन सा प्रॉफिट में कौन सा लॉस है, किसका स्टॉप लॉस सेट हो रहा है, किसका स्टेप हो गया स्टॉप लॉस। सो 2 ट्रेड बहुत होते हैं यार एट ए टाइम। लेने लो, ठीक है, नहीं है तो अपन नेक्स्ट कल देखेंगे। फिर मार्केट तो कहीं भाग नहीं रही है। फाइंड योर स्टाइल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने उस दिन भी वेबिनार में यही बात बोली, फाइंड योर स्टाइल। आप किस टाइप के ट्रेडर हो, स्विंग हो, लॉन्ग टर्म हो, इंट्राडे हो, क्या हो, ढूंढो तो सही पहले अपने अंदर। जैसे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मैंने जब ब्रेकआउट पे लिया मेरा उस दिन ही स्टॉप लॉस क्या, मैं लॉस में चला गया, वो मेरे पोर्टफोलियो में पड़ा रहा, वो मैं स्विंग ट्रेडर से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाता। सो फाइंड योर स्टाइल ऑलवेज। मैंने फेसबुक पे भी डाला था, रिमेंबर दिस थिंग इज, मार्केट के 3 फेजेस होते हैं। ये मैं किसी दिन और कराऊंगा। आप कौन से फेज की वॉलेटिलिटी और किस फेज में ट्रेड करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके टेम्परामेंट पे होता है कि आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है। हैव ए क्लियर कट स्ट्रेटजी व्हिच वे यू वांट टू डू इज। आपने मूविंग एवरेज पे करना है, सुपर ट्रेंड पे करना है, आपके पास वो करना है, जिस पे करना है एक पे करो। ये नहीं करो आज सुपर ट्रेंड, कल मूविंग एवरेज, परसों बॉलिंजर बैंड, तीसरे दिन एमएसीडी, 5वें दिन पता नहीं कुछ और ले आए, फिर 10 इंडिकेटर लगा के करना है। Always start small. Don't pick up illiquid stocks. Pick up good stocks. Close all open position before you go off to the bid or the trading time is over. कोई खुली रहेगी आपकी पोजीशन, आपको नींद नहीं आएगी, खासकर करो लॉस में। So every failure is step to success. I have learned it very nice way. बहुत पैसा दिया मार्केट में, बट आप सीख गए। It's okay not to trade. I'm sharing it
few of my friends do end up taking a lot of trade. और ब्रेक लेना जरूरी है. किटकैट खाओ यार उस टाइम. Develop self confidence in these things. अपनी strengths पे काम करो. Build a self image in yourself. खासकर अपनी आंखों में, अपने दिल में. Take risk थोड़ा बहुत. आपके goals तभी आएंगे. और सबसे बड़ा एक चीज होता है human nature. Whenever you help somebody, it gives you a lot of satisfaction. Help your fellow traders in some form or another. Now I must say couple of times किसी ने डाला था सर NSE में वो क्या कहते हैं promoters buy कर रहे हैं. HCL Tech डाला था at 1100 odd some rupees. मैं उसमें अभी भी बैठा, मुझे 635-40 रुपीस मिल रहे हैं. TCS का आया था. We had done it in Reflex also. Reflex हमने 126 पे ही बोल दिया था, वो 138 गया. 12 रुपए किसी को मिल गया 10%. It gives a lot of satisfaction. या किसी ने लिया नहीं लिया, पर मैंने तो किसी को गलत एडवाइस नहीं दिया. So help your fellow colleagues. कोई शर्म की बात नहीं है. अकेले कोई आगे नहीं जाता, हमेशा फौज आगे जाती है. अकेले तो सोल्जर मारा ही जाता है. Stay positive. Stay in fighting mode. Stay brave. Be ambitious. Focus and strong. ये बहुत जरूरी है. अगर आप ये चीज नहीं रहोगे ना, पॉजिटिव नहीं रहोगे, तो आप ये सारे नीचे वाला कुछ भी नहीं आएगा. पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट. थैंक यू. सॉरी आई टुक लॉट ऑफ टाइम. पवन सर, अब आप कुछ करना लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं. फिर मैंने स्टॉप शेयरिंग कर दिया. आज तो पूरा ग्रंथ खोल दिया आपने. मैंने उस दिन भी कहा था कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि कोई सोचता नहीं है. सही कह रहे हैं आप. सर वही है ना, सबकी स्ट्रेटजी एक ही है कि सुबह उठें, मार्केट में काम करें, पैसा बना लें, बस. इससे अलावा कुछ नहीं है. कोई प्लान नहीं है, कोई कुछ नहीं है. मतलब सारी गेम जो है ना सर, सारी गेम वहीं पे है. अगर आप कुछ भी परचेज करने से पहले आपका कुछ गेम प्लान क्या है, बिना गेम प्लान के खेलोगे तो हमेशा लॉस ही होगा. सारी गेम जो है ना वो गेम प्लान के ऊपर डिपेंडेंट है सर. अभी देखो, आज मेरी आपसे जब सुबह बात हुई, नियर अबाउट कुछ 2 o'clock का टाइम था, 3 o'clock का टाइम था सर. 2:30. तो मैंने आपको क्या बोला कि सर मैं कुछ पैटर्न के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ. कल भी हमारी बात हुई थी इवनिंग में. मैंने यही बोला ना कि मैं किसी कंसेप्ट के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ. तो अब जो मेरे से टीचिंग लर्निंग कर रहे हैं, तो वो क्या सोचते होंगे, सर आप किस पैटर्न के ऊपर स्टडी कर रहे हो, आप किस नई चीज के ऊपर स्टडी कर रहे हो, आपको तो स्टॉक मार्केट आती है. सिंपल सी बात है भाई, बात करके सिस्टम पे. और जब सुबह खुद खेलने जाना ना, तो उसकी अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो लॉस होंगे ही हो. हम अभी भी कमल सर ने क्लास जब लगा रहे थे, तो मैं साथ साथ इनकी बातें सुन रहा था और साथ साथ अपना होमवर्क कर रहा था. मेरा होमवर्क है क्या कि भाई कल मैं जब खेलने जाऊं तो मेरा पूरा सिस्टम जो है ना वो रेडी हो, मुझे पता हो मैंने क्या बाय करना है, कहाँ पे क्या सेल करना है, क्या मेरे एंट्री पॉइंट्स होंगे, क्या मेरे टारगेट्स पॉइंट होंगे, कौन से स्टॉक को मैंने बाय करना है, किसको नहीं बाय करना, पूरा उसका व्यू, ओवरव्यू लेके सिस्टम पे फिर बैठूंगा. मैं पवन सर आपको यहाँ पे रोकता हूँ. एक सेकंड में. गाइस, मैंने आपको एक स्टेज बताई थी ना, स्टेज 4 आती है जब आप पागलों की तरह कमा रहे होते. पवन सर और मैं एक तरीके से कर रहे थे और हमारा प्रॉफिट करीब, फिगर्स बता दूं इनको, बता दो क्या फर्क है. वी वर रनिंग इन 9.75 lakhs प्रॉफिट में. मैं आपको अब एक्चुअल बता रहा हूं, हमारा कोई सिस्टम है. वी वर रनिंग 9.75 lakhs इन प्रॉफिट. और 2 दिन में मार्केट रिवर्स हुई, तो हमारा जो हमने सीड मनी दिया था, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली हमें काट दिया. मतलब 9.75 lakhs भी गया, प्लस हमने जो दिया था 4-5 लाख वो भी उड़ गया. एंड व्हाट इट कॉस्ट टू पवन सर, मैंने तो इनसे ये नहीं पूछा ना, ये पहले ही बोल रहे हैं ना, ये होमवर्क कर रहे हैं. ही इज रीऑर्गेनाइजिंग हिमसेल्फ फॉर ए सेकेंड इनिंग्स.
डिस्पाइट लाइक दिस इज, मैंने आपको बैंक निफ्टी इतनी कराई, अक्टूबर में बैंक निफ्टी ने 3 लाख का लॉस दिया मुझे। मैं एकदम वापस हो गया, मैं रीऑर्गेनाइज करने अपने आप को चला गया। मेरे अंदर भी वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन और सेल्फ क्रिटिक के बहुत फॉर्म हो गया। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ, इवन पवन सर जिनके हम क्लासेस सुनते हैं, मैंने वो लॉस देखा है जब मार्केट खुली थी, और अगर हमारी वो पोजीशन सिस्टम नहीं काटता तो हम 15 लाख के लॉस में होना था मिनिमम। ये नहीं था कि हम आज अगर हम होल्ड कर रहे होते तो हम बहुत प्रॉफिट में भी होते, बट उस टाइम हमें लॉस हुआ है सबको। ये एक साइक है हमारे अंदर। और उसके बाद पवन सर, तो आप सब उनकी क्लासेस अटेंड करते हैं, वो भी तो बैठ के पढ़ रहे हैं ना। तो दिस इज पॉजिटिव। मैं तो मार्केट तो बंद करके हम जा सकते थे ना कि बाय बाय टाटा हो गया बस, बहुत हो गया। चलो पवन सर आप करें प्लीज। देखो, हमें ये बताने में कोई शर्म नहीं है कि हमारा ट्रेड जो गलत हुआ, मार्केट ने अनसर्टेनिटी बनाई और हमारे ट्रेड में गलत हुआ, कोई वरी नहीं है। अगर हमने कुछ कमाया, कुछ दे दिया, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 2 दिन कुछ लॉस हुआ, आगे वाले आने वाले 20 दिन फिर प्रॉफिट कमा लेंगे। वरी उस चीज का नहीं है, वरी उस चीज का है कि हमने क्या गलती किया, हमने वहां पे कौन से पॉइंट को मिस किया, किस चीज को इग्नोर किया, वो आइडेंटिफाई कर ली कि भाई हमने ये वाली गलती की, यहाँ पे हम लोग गलत हुए, जहाँ यहाँ पे हमारा जो माइंड साइकोलॉजी, जहाँ ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ भी एबीसी लगा लो, हमने वो पकड़ लिया। नेक्स्ट मार्केट ने जब टर्न लिया, हम फिर बैक टू पेविलियन अपना फिर वापस कर लिया, जो मार्केट को दिया हमने फिर रिटर्न पा लिया। मतलब गेम प्लान हमारा, गलती क्या हुआ, गलती क्यों हुआ, मेन पॉइंट ये है। अगर वो मेन पॉइंट नहीं समझेंगे तो फिर तो हम लोग वो हो गए ना, बाहर हो गए गेम से। तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं सबको कि अगर हमारे पास विकेट बचेगी तो हम खेल पाएंगे, अगर हमारे पास विकेट नहीं बचेगी हम नहीं खेल पाएंगे। आज की डेट में वही कोहली है जो किसी टाइम के ऊपर फॉर्म में होता है तो हर मैच में सिक्सर लगा रहा है, हर मैच में रन बना रहा है। वही कोहली है जो 10 मैच में स्कोर ही नहीं बना पाएगा। क्या उसमें कोहली की परफॉर्मेंस खराब हुई तो इट मींस क्या कोहली को खेलना ही नहीं आता? क्या कोहली ने कभी बैट ही नहीं पकड़ा? ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है, कुछ टाइम आया, ठीक है, उसने अगर उसकी बैड परफॉर्मेंस चली तो उसने दोबारा प्रैक्टिस की, उसने नेट प्रैक्टिस की, अपनी गलती देखी, अपने को फिर अपने आप को रीस्टार्ट किया। मैं आज अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और मेरे एक सज्जन थे साथ में, तो मैं उनको कह रहा था, मैं कहा मैं अपने आप को अगेन रीस्टार्ट कर रहा हूँ। कई ऐसे टॉपिक्स थे जो मैं इग्नोर कर रहा था, मैं उसको दोबारा से रिवाइंड करके अपना ऐड कर रहा हूं कि मैं एक नई और एक बढ़िया सी नई स्ट्रेटजी के साथ आऊंगा और नई चीजें लेके आऊंगा। अब यही हम आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कमल सर ने अभी बताया कि कभी भी ये नहीं सोचना कि पवन को स्टॉक बताएगा हम बाय कर लें, कमल सर को स्टॉक बताएंगे बाय कर लेंगे, या थर्ड पर्सन कोई एबीसी स्टॉक बताएगा बाय कर लेंगे। नहीं, जब तक आप खुद सेल्फ प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बनेंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आप से मार्केट 15 दिन प्रॉफिट लोगे, एक दिन में मार्केट प्रॉफिट लेके चली जाएगी। उसके बाद ऐसा इमोशनल हिट होगा, ऐसा इमोशनल मतलब अत्याचार होगा आप लोगों के साथ, आप ट्रेडिंग ही नहीं कर पाओगे। आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे और मूव निकल जाएगा। जिस दिन आप ट्रेड करोगे अगेन आपके ट्रेड जो है वो रिवर्स हो जाएंगे। ऐसा बहुत बार होता है, सबके साथ हुआ है। इसी चीज के ऊपर फोकस करो। पहले अपने अंदर की बात जो अभी कमल सर ने बताई, पहले अपने आप को पहचानो कि आप स्विंग ट्रेडर हो, आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो, आप रीटेस्ट ट्रेडर हो, आप एक फ्लैट मार्केट के ट्रेडर हो, कि आप एक राइड करने वाले ट्रेडर हो, आप कौन से ट्रेडर हो। सेकंड पॉइंट कि आपको ट्रेड लेने के बाद क्या डर लग रहा है। थर्ड पॉइंट कि जब आप ट्रेडिंग करने बैठे हो कुछ गेम प्लान है, कोई आपकी एग्जिट पॉइंट है, कोई प्लान ए प्लान बी कुछ है। ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो मेन है। जब आपने इनके ऊपर वर्क कर लिया, इनके ऊपर टाइम दे दिया, अपने ऊपर टाइम दे दिया,
मेन क्या है, अपने ऊपर टाइम देना। अपने ऊपर टाइम दे दिया, दैट्स इनफ। उसके बाद आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। चाहे कोई भी सिखा दे, मैं सिखा दूं, कमल सर सिखा दें, और कोई सिखा दे, हम लोग सिर्फ रास्ता बता सकते हैं, हम लोग आपको चला नहीं सकते। हम लोग आप पकड़ के, अब मेरे पास स्टूडेंट सीखते हैं, आज की डेट में भी ये नहीं है कि 100% स्टूडेंट्स जो है वो ट्रेड कर पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जो हम लोग उनको कंसेप्ट बताते हैं उसके ऊपर चलते नहीं है, तो फेल होने के चांसेस हो जाते हैं, होते ही हैं जी, हो नहीं जाते, फेल होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि जो हम लोग प्रोसेस बताएंगे उस प्रोसेस में काम नहीं करना है, क्योंकि वो प्रोसेस जो है वो लंबा प्रोसेस है। मेन प्रॉब्लम सारी यहाँ है। राइट नेक्स्ट निर्मल जैन जी, निर्मल जैन जी अनम्यूट कर लो यार, अनम्यूट कर लो। सर अब कोई क्वेरी है तो क्वेरी ले लो इन सबकी। Anybody wants to ask anything? एक बात मैं आपको बोलता हूँ कि मन क्या है, आप जब भी कोई चीज लेते हो ना, ये सोच के लो कि आपने इससे कुछ करना है, कुछ आगे लेके जाना है, पूरा पॉजिटिव होके ले। मैं आपको एक सीधी बात बताता हूँ, मैंने टाटा स्टील लिया, डिस्पाइट नोइंग सो मच ऑफ टेक्निकल्स, मैंने 1290 की मेरी एवरेज, क्योंकि मैं उसका 1600 का लेवल देख रहा हूँ। ये अभी रिसेंटली गलतियां, मेरा नौकरी में एवरेज करीब 6000 के करीब है, और कोई छोटे शेयर नहीं है। नहीं यार, नौकरी 7000 7500 जाना है, 1500 रुपए बनाऊंगा, 1500 नीचे आ गया। जब हमने गलतियां की, मैंने डेबिट स्ट्रैटेजियां ले ली इतनी सारी, सब में लॉस में बंद किया, डिस्पाइट ऑल एडजस्टमेंट्स। मेरे 70-80 हजार रुपए मैंने लॉस खाया, डिस्पाइट ऑल दिस थिंग। सिर्फ मुझे वो देखे ग्रासिम बचा लास्ट, अदरवाइज तो मैं मोटे लॉस में। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर साइकोलॉजी फर्स्ट। कोई नहीं आपको सिखा सकता, मैं भी नहीं सिखा सकता। आप जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी कर लो, आप जब तक सर वही सीखना है कि साइकोलॉजी को पकड़ें कैसे। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छा स्विंग ट्रेडर हूँ, कभी कि जैसे इंट्राडे तो मैं नहीं कर पाता, तो ये मुझे समझ में आ गया। तो मैं एलिमिनेशन सही है या सिलेक्शन सही है, इसको समझने के लिए। सर एक बात करो, एक छोटा सा काम करो, बाथरूम है घर में ना, बाथरूम का काम, उसमें शीशा लगा होता है, ठीक है, उसमें जाके देखो अपने आप को पहले, आप कितने लोग हो आपके अंदर। मेरे अंदर तो कॉल गिवर्स वाले भी थे, मेरे दिमाग में तो 6 बंदे थे, मैं था, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, कॉल गिवर्स, नेगेटिव थॉट्स, पता नहीं और ब्ला ब्ला क्या क्या मैंने अपने दिमाग में डाला। दिमाग जब कोई कॉल गिवर मुझे कॉल देखते हैं ना, वो आप देखते हैं ना ग्रुप में, वो बड़े डिस्कशन लेट्स लर्न के टेलीग्राम में, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कभी मुझे पार्टिसिपेट करते देखा उसमें, या डॉक्टर अनीश को या पवन सर को, हम लोग पार्टिसिपेट करते। दीज आर नॉइसेस फॉर अस, दीज आर नॉइसेस फॉर मी। मुझे नफरत है इतनी नॉइसेस से, मुझे इरिटेशन होती है कि क्या ट्रैप ले डाउन कर रहे हैं एक रिटेल को मारने का। आई टोल्ड यू, वो एक ना हमारा एक रिकमेंडेशन वाला ग्रुप है, स्टॉक मार्केट आइडियाज करके, इफ आई करेक्टली रिमेंबर, हाँ वही है। उसमें ना रोज रॉकेट आते हैं, बम आते हैं, स्माइलियां आती हैं, वो जितना वो डालते हैं ना, उतना बंदे को बेवकूफ बना रहे, उतना मेंटल डेवलपमेंट ना नीचे कर रहे हैं, सब नॉर्मल मेंटल इंटेलिजेंस हो जाती है आप जब दूसरों को फॉलो करते हो, योर ब्रेन डजंट ग्रो। और तभी कहते हैं ना, आप जब कॉलेज की लाइफ खत्म करके रियल वर्ल्ड में आते हो, तो रियल मेंटल डेवलपमेंट स्टार्ट्स, बिकॉज तब तक आपको एक टीचर गाइड कर रहा है। पर जब आप खुद कूदते हो मार्केट में और दुनिया में आते हो, तो आपके रियल समझ आता है कि आप क्या हो। सबसे पहले शीशे में खड़े होकर अपने आप को देखो,
टॉक टू योरसेल्फ देयर, क्योंकि उसमें बंद दरवाजे में कोई नहीं पता है. जस्ट टॉक टू वेरी स्लोली टू योरसेल्फ. आपको पता लगेगा कि आपका दूसरा रूट क्या है बॉडी का. इसको कहते हैं फाइंडिंग योर इनर सेल्फ. तो फाइंड योर इनर सेल्फ, आपका अंदर का क्या आदमी बोल रहे हो, वो हम के साथ जो दूसरा आदमी है ना, वो क्या बोलता है आपको, वो सबसे जरूरी है. I did made lot of money in Bank Nifty, lost in one trade, थोड़ा बहुत किया. मेरा अकल दिमाग चढ़ गया, मैं रो गया. और मैंने पवन सर को क्या बोला वापस, मैंने कहा मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्विंग ट्रेड, आई एम गोइंग बैक टू माय स्विंग ट्रेड. मैंने इंट्राडे बिल्कुल बंद कर दिया. मुझे पता है मैं जिसमें सबसे स्ट्रांग हूँ, मैं दूसरे की क्या करूँ. इफ आई एम नॉट ए गुड रनर, तो साला मैं 100 मीटर की स्प्रिंट क्यों लगानी है. मैं साइकिल चलाऊंगा ना, मैं साइकिलिंग में अच्छा हूँ, तो मैं साइकिल चलाऊं ना, मैं क्यों दौड़ने लगूं. सो नो योरसेल्फ फर्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है. आप अपने आप को नहीं देख पाते. सी यूट्यूब में सिर्फ, व्हाट इज यूट्यूब एक्चुअली इज अ वे टू अर्न मनी. आपके 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर है, 4000 आवर्स से ऊपर है, आपको पैसा आना शुरू हो जाता है. यस एग्रीड. यस सर, एग्रीड. अरे भाई सौरभ, प्रिंस पाइप को छोड़ दो भाई, वो पाइप ही तुझे लेके बैठ जाएगा. नहीं सर, मुझे एक एक्चुअली कैंडलस्टिक के बारे में पूछना है, प्रिंस पाइप के बारे में नहीं पूछना. पूछ भाई. उसमें कुछ बना है, पैटर्न बना है, मैं वो पूछना चाह रहा था, इसलिए मैंने लिखा, बोला नहीं. प्रिंस पाइप में बुलिश हरामी पैटर्न बना है ना, बिना चार्ट देखे बोल रहा हूं मैं, है ना. सी, यही एक प्रॉब्लम है. तेरी असेसमेंट सौरभ क्या कहती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. तो बुलिश हरामी बोल के सारे कल सुबह खरीदने जा रहे हैं स्टॉक, ट्रस्ट नहीं. वो मेरे एक स्क्रीनर में आया हुआ है, मुझे वहां से याद है कि प्रिंस पाइप ने बुलिश हरामी पैटर्न बनाया डेली टाइम फ्रेम पे, मेरे ख्याल से मेरे एक स्क्रीनर में आया हुआ है, तो मुझे नाम याद है इसका. तो बुलिश हरामी भी नहीं बना, मुझे कुछ अलग लग रहा है वो. आप अगर चार्ट पे देखो तो कुछ अलग है. डे पे, डेली में मैंने गूगल पे भी सर्च करा है. सौरभ जी, वो फ्लैट कंसोलिडेशन मार्केट में चल रहा है, उसमें कुछ नहीं है. हाँ, मुझे नहीं पता, मेरे एक स्क्रीनर में आया हुआ, मैं तो देखता भी नहीं हूँ. जब तक वो 752 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक बुलिश नहीं होगा, तब तक नहीं मार्केट में. कुछ अलग सर, मैं इस पैटर्न को देखती है बना क्या, कुछ अलग लगा मेरे को. आखिरी के 3 कैंडल, मैं उसे आखिरी के 3 कैंडल का इशू है. ये क्या है, ये क्या है. हाँ, डोजी. ये इवनिंग स्टार नहीं बना है, सिर्फ कलर इसका डिफरेंट है ना. हाँ, तभी कुछ पैटर्न है ही नहीं, खत्म बात. इसको वो 4 आवर पे करके देखो क्या बनता है. जी. छोटी डोजी बनी है, हाँ, इसका मतलब कंटिन्यूएशन पैटर्न हो सकता है, शेयर नीचे ही आएगा पहले. इसको 1 आवर पे देख, ये रिवर्सल मार रहा है, ये ऊपर जाएगा. अब आ गया ना, कंफ्यूज हो गया, हाँ, हो गया कंफ्यूज, हाँ, कर दिया ना मैंने तुझे कंफ्यूज. बिल्कुल सर. अब बोल, कल खरीदेगा कि बेचेगा. मैं तो डिलीवरी लेके बैठा हूँ. गॉड ब्लेस यू. सही है, 744 पे निकल जाना. जी, सो सेल्फ एनालाइज योरसेल्फ, मोस्ट इंपॉर्टेंट. बिल्कुल सेम यही लाइन लगी हुई है सर मेरी भी. हाँ, अभी एक साथ रुको, मैं तो आप लोग को दिखाता हूँ. ये देखो, आज क्रिप्टो में मैंने ट्रेड लिया. जी, कहीं पे लगता है मेरा स्टॉप लॉस सेट हुआ होगा. कहीं पे आप में से किसी को लगता है मेरा एक भी स्टॉप लॉस सेट हुआ? सर यहाँ पे स्टॉप लॉस था कहाँ, ये तो समझ में नहीं आया एक्चुअल के अंदर. ये लाइन का ब्रेकआउट है, ये जी. स्टॉप लॉस है. अच्छा, ओके ओके. ये लाइन का ब्रेकआउट है, ये स्टॉप लॉस है. जी. अब बताओ, कहीं स्टॉप कहीं लॉस सेट होता लग रहा है? नहीं सर. देखा ना, आ गए ना भाई. मेरे इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ. ध्यान से चार्ट देख लिया करो, जो बोल रहा हूँ उसको ना पकड़ो. अब बताओ कितने स्टॉप लॉस सेट हुए हैं? सोच के ट्रेड करो, क्या दूसरा बोल रहा है देखो तो सही. चलो
और कुछ करना है कि बंद करें सेशन? फिर अब बहुत हो गया आज भी। कल अच्छा सेशन होएगा। कल आप सबसे वादा रहा, शेयर वर्थ लेस देन 50 पैसे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। कैसा लगा? मिलता है नहीं मिलता आपको, ये डिफरेंट बात है। ये कर रहे हैं कल वेबिनार अटेंड किसी ने? शेयर वर्थ लेस देन 50 पैसे से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, मैं बोल रहा हूं। और 10 मिनट में स्टॉक भी दे दूंगा आपको। दो स्टॉक दूंगा 20 रुपीज के नीचे, एक स्टॉक दूंगा 50 पैसे के नीचे। ट्रेड वाले बनने लेते बनते हो, लेट्स सी इट। मजा आएगा कल। कल वील मीट एट सेम टाइम, ठीक है पवन सर? जी सर। यस सर, यस। अब आज देखना, कल देखना अटेंडेंस होगी। सब आएंगे सर। कल पहली स्टॉक है ना, कल सबकी अटेंडेंस होनी है बड़ी तगड़ी।